শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 87 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 2.87 অনওয়ার্ডস। বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে করো রোষ, বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে করো রোষ, তোমারও অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ। তোমারও অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ। তুমি শ্লোকের বিপরীত অর্থ করছো, এসব ব্রহ্মাজি কই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কই বললেন। আর যখন তোমার সেই ভুলের কথা বলা হয়েছে তুমি রাগ করছো। তোমার বিশ্লেষণে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ রয়েছে। अभिमिष्ट विधेय अंश। करुणा राधे माता जी है जी प्रभु। इसका हरे कृष्ण, इसका इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है ना? जी जी है, वर्ड टू वर्ड है। हाँ, विरुद्ध अर्था मीन्स कॉन्ट्ररी मीनिंग। नो नो नो, जो मैंने पूछा उसी की बोली। हाँ, कौन सा वर्ड? अभिमिष्ट विधेय अंश, सेकंड लाइन में जो वर्ड है उसके लिए प्रभुपाद जी क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दिया है? अभिविष्ट विद्या अंशा ऑफ द अनकंसिडर्ड प्रेडिकेट पोर्शन। अच्छा, अनकंसिडर्ड प्रेडिकेट पोर्शन। ओके। तुम्हार विश्लेषण है। तो ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं अभिमिष्ट विधेयांश दोष রয়েছে। 88 যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা, স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা। যার ভগবত্তা থেকে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশ পায়। वेरी क्लियर। भगवान कृष्ण के भगवत्ता से ही तो बाकी नारायण विष्णु एक्सेट्रा एक्सेट्रा अवतार उन लोगों का भगवत्ता प्रकाश पाते हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। जार भगवत्ता হইতে অন্য ভগবত্তার প্রকাশ পায় তাকেই স্বয়ং ভগবান বলা যায়, তারই মধ্যে সেই সত্তা বিরাজमान। ठीक है, बहुत भक्त लोग वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब वीडियो ऑन करके क्लास में साक्षात अपना उपस्थिति रहिए, बी फुल्ली प्रेजेंट, नॉट पार्शियली। पार्शियल एक्सपेंशन देखिए भगवान ने मना किया है। भगवान भी चाहते सब साकार रूप का आराधना करें, हम लोग भी चाहते सब साकार रूप में क्लास में प्रेजेंट रहे, निराकार ब्रह्म रूप में नहीं। इससे क्या होगा, जो लोग साकार रूप में प्रेजेंट है वीडियो ऑन करके उन लोग भी हताश हो जाएगा, बोलेगा देखो इन लोग कितना स्मार्ट वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं और क्लास सुन रहा है, मैं ऐसे वीडियो ऑन करके बैठा हुआ हूं। Be a part of development for the class, not vice versa. Okay, अगला श्लोक। दीप থেকে দীপ হইতে জ্বলছে বহু দীপেরও জ্বলন, দীপ হইতে জ্বলছে বহু দীপেরও জ্বলন, মূল দীপ তাহা করিয়ে গণন, মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন। একটি দ্বীপ থেকে যখন অন্যান্য বহু দ্বীপ প্রজ্বলিত হয় তখন প্রজ্বলনকারী সেই দ্বীপটিকেই মূল দ্বীপ বলে বিবেচনা করা হয়। ব্রহ্ম সংহিতায় বিষ্ণু তত্ত্ব বা পরম ভগবত তত্ত্বকে দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ ভগবানের থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রকাশ তাদের উৎস মূল आदि पुरुषের সঙ্গে সর্বতভাবে সমান। ये देखा जाए तो भगवान से जो भी प्रकाश हो रहा है, जो भी एक्सपेंशन है, सब भगवान जैसा ही है। क्या आप रामचंद्र जी को भगवान नहीं बोलेंगे? क्या विष्णु को नारायण को भगवान नहीं बोलेंगे? सबको तो भगवान जैसे है। लेकिन একটি প্রজ্বলিত দ্বীপ থেকে আরো অনেক দ্বীপকে জ্বালানো যেতে পারে।
এবং সেই দ্বীপগুলি মূল দ্বীপটি থেকে কোনো অংশেই निकृष्ट नয়। सबको एक ही जैसा लगेगा ना। सोचिए कैंडल से आप बहुत कैंडल जला रहे हैं, फिर पहले वाला कैंडल को भी रख दिया बीच में, तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन किंतु तबुओ फिर भी প্রজ্বলনকারী প্রথম দ্বীপটিকেই মূল দ্বীপ বলে গণনা করা যায়। তেমনি পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে তার অংশ প্রকাশ বহু বিষ্ণু তত্ত্বে বিস্তার করেন, যদিও সেই সমস্ত অংশ প্রকাশদের সকলেই তার মতো শক্তি সম্পন্ন, মানে অল আর বিষ্ণু তত্ত্ব সকলে, এটা আবার বি ভেরি কেয়ারফুল, কারণ কি সকলেই তার মতো শক্তি সম্পন্ন এটা বলাও ঠিক হবে না। কারণ কি আমরা জানি কার কত গুণ। এখন নারায়ণ 60 গুণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 64 গুণ, হ্যাঁ, কিন্তু সকলেই শক্তি সম্পন্ন, সকলেই ভগবান। নারায়ণ অনেক অসুরকে বধ করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনেক অসুরকে বধ করেছেন, অল আর ইকুয়ালি পাওয়ারফুল। কিন্তু তবু আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান রূপে তাকেই তাদের সকলের উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্রহ্মা ও শিব এই দুই গুণাবতারের প্রকাশও বিস্তৃত হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে সম্ভস্ত তমধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময় সুখী দীপ শিখা স্থানীয়স্য ন तथा साम्यम। शंभु तत्व यानी शिव तत्व के बारे में बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। शंभु तत्व বা শিব তমগুণের অধিকারী হওয়ার ফলে কাজলের দ্বারা আচ্ছাদিত দীপশিখার মতো। ओके, ऐसे जीव गोस्वामी तुलना दिया गया है। तो दीपशिखा नहीं समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। এই শিখার জ্যোতি অত্যন্ত অল্প। सोचिए ये जो सोलते के की बोले बांग्ला है, हिंदी से सोलते पोलते ना कि सोलते जाके बोले क्या बोलते हैं हिंदी में, जो कॉटन से बना रहता है जब आप प्रदीप जलाता है, बत्ती बाती बाती बाती। सोचिए बाती थोड़ा काला वाला हो गया तो लाइट कितना जलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। हाँ, এই শিখার জ্যোতি অত্যন্ত অল্প। इसमें भी भगवत तत्व है लेकिन कम मात्रा में है। তাই বিষ্ণু তত্ত্বের সঙ্গে শিব শক্তির কোনো তুলনা হয় না। তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ, হইছে সব অবতারে কৃষ্ণ সে কারণ। আরো এক শ্লোক শুনো কুবাখ্যা খণ্ডন। আরো এক শ্লোক শোনো কুব্যাখ্যা খণ্ডন। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের পরম কারণ। এই প্রসঙ্গে আরো একটি শ্লোক শোনো, ব্রহ্মাজি কৃষ্ণকে বললেন, যাতে সব রকম কুবাখ্যা খণ্ডন করা হয়েছে। अभी ब्रह्मा जी कहां से कोट कर रहे हैं? ये श्लोक 91 और 92 जो चैतन्य चरितामृत में आया है, ये श्रीमद् भागवतम का 2nd चैप्टर का श्लोक है। अत्र सर्ग विसर्गश्च अत्र सर्ग विसर्गश्च आनं पोषणमूतया आनं पोषणमूतयः मन्वन्तरोषानुकथा मन्वन्तरे शानुकथा निरोध मुक्तिराश्रया निरोध मुक्तिराश्रय दशामास्य विशुद्ध्यर्थम दशमस्य विशुद्धार्थं नवनाम इह लक्षणम नवनामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मान वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चञ्जसा। श्रुतेनार्थेन चञ्जसा। सो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द फर्स्ट 2 लाइन्स यानी 91 नंबर श्लोक। सब भक्तों को इसको कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम का जो 10 टॉपिक्स डिस्कस किया गया है, क्या क्या चीजों के बारे में श्रीमद् भागवतम में आलोचना किया गया है, वो बताया गया है। ओके, অনুবাদ। এইখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের 10টি বিষয় বা তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে।
স্বর্গ বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির সৃষ্টি, বিসর্গ বা ব্রহ্মার সৃষ্টি, স্থান বা সৃষ্টির সৃষ্টি, পোষণ বা ভগবত ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ মানে কৃপা। 5 नंबर उक्ति व कर्म वासना। देखिए सब ये सब के बारे में दिया हुआ है। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, पहला वाला पॉइंट क्या है? स्वर्ग व ब्रह्मांडेर उपादानगुली सृष्टि, इसके बारे में दिया हुआ है ना कि कैसे भगवान ने वो दृष्टिपात से महातत्व 24 तत्व जो सब प्रकट किया, क्योंकि वो सब दरकार था ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए। फिर 2 नंबर ब्रह्मा का सृष्टि, उसके बारे में भी तो दिया है कैसे भगवान के नाभि से ब्रह्मा निकला और वो ढूंढ रहा था क्या कौन हमको ये सर्वशक्ति वाली कौन है, कौन हमको जन्म दिया। तो फिर वो नाल के अंदर में जाते हैं, तप सुनते हैं, वो सब दिया हुआ है ना। तो ये भी भागवत में मिलेगा। तीसरा क्या? स्थान व सृष्टि, किस तरह अलग अलग मनवंतर में कौन मनु बना, कौन इंद्र बना, एक एक ब्रह्मांड, सब कुछ ये वर्णन दिया हुआ है। चौथा पोषण व भगवत भक्तों प्रति अनुग्रह। आप लोग बताइए कहाँ दिया हुआ है ये भगवान का भक्तों के प्रति कृपा? भागवतम में कहाँ कहाँ उल्लेख है, संक्षेप में बताइए। गजेंद्र मोक्ष लीला। एब्सोल्युटली, प्रहलाद को कैसे उद्धार किया, कैसे भगवान ने ध्रुव महाराज पे कृपा किया। हाँ, अलग अलग भक्तों को ध्रुव महाराज का कथा। हाँ। 5 नंबर क्या है? उक्ति व कर्म वासना। इसको इंग्लिश में उक्ति व कर्म वासना को दिया है 5 नंबर। इम्पेटस फॉर एक्टिविटी, कर्म वासना, इसके बारे में दिया हुआ है कहाँ, क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है इसमें? कर्म वासना कैसे दक्ष प्रजापति का उसका संतान उत्पादन करने का इच्छा था और बार बार वो कर रहा था अपना काम, 1000 संतान, और फिर नारद मुनि सबको ब्रह्मचारी बना दिया। हरे कृष्ण, ऐसे 2-3 बार हुआ है ना इंद्रावती माता जी, ये उदाहरण आ सकता है। फिर 6 में क्या है? মনবন্তর বা সাধারণ মানুষের জন্য মনুর প্রদত্ত কর্ম বা কর্ম। तो वही तो मनु कैसे हर एक मनवंतर में कैसे सब, और उस मनु में कौन आया, भगवान प्रकट हुआ, ये सब के बारे में दिया है। तो पृथु महाराज की कथा इसमें आ सकती है। एब्सोल्युटली। 7 नंबर में क्या है? ईशानु कथा बा भगवानेर अवतारणेर वर्णना। इसमें क्या क्या आएगा ईशानु कथा में? माधव स्वरूप प्रभु बताइए, बहुत सिंपल। भागवत में आता है ना भगवान का अवतरण के बारे में, क्या क्या आता है? सरोज कृष्ण माता जी, इंद्रावती माता जी, क्या क्या आता है भगवान का? भगवान के 24 अवतार के बारे में। हाँ 24 तो पूरा 24 आता है? नहीं उतना नहीं आता है। हाँ, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कृष्ण भगवान आते हैं स्वयं, ये सब के बारे में दिया है। इसको बोलते हैं ईशानु कथा। 8 नंबर क्या है? निरोध व सृष्टिर संवरण। संवरण माने गुटानो, वाइंडिंग अप, बुझते पाচ্ছেন? तो प्रलय के समय कैसे सब कारण महाविष्णु के अंदर चला जाता है, प्रवेश करता है ब्रह्मांड, उसके बारे में दिया हुआ है। 9 नंबर स्थूल व सूक्ष्म जड़ आवरण থেকে মুক্তি। हाँ, कैसे हम लोग अपना स्थूल यानी ये स्थूल शरीर और जड़ आवरण, सूक्ष्म जड़, सूक्ष्म माने सूक्ष्म शरीर से कैसे मुक्ति हो जाता है भक्ति करके, कैसे हम लोग का सूक्ष्म शरीर वो ब्रह्मांड का अष्ट आवरण है ना, मालूम है ब्रह्मांड का अष्ट आवरण, उसमें सब एक एक करके मिल जाता है, फिर हम लोग एकदम नंगा हो जाता है। नंगा माने कोई शरीर नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा, और उसको लेकर हम लोग आत्मा परमात्मा भी छोड़ जाता है, फिर उस समय सिर्फ आत्मा, विशुद्ध आत्मा वो भगवान का धाम प्रवेश करता है। ये भी बारे में दिया हुआ है ना भागवतम में, ये सब कथा आता है। 10 नंबर क्या? आश्रय व परम आश्रय परमेश्वर भगवान। हाँ, इसके बारे में बहुत दिया हुआ है कि कैसे भगवान सभी जीवों का परम आश्रय है। तो दीज आर द 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम। तो उसीलिए मैं चाहूंगा सब अनम्यूट करके मेरे बाद एक बार ये श्लोक दोहराइए। अत्र सर्ग विसर्गश्च
स्थानं पोषणमुतया मन्वन्तर ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय म्यूट कर दीजिए सब म्यूट कर दीजिए। तो फिर से मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ ये 10 टॉपिक क्या क्या है। স্বর্গ বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলি সৃষ্টি, বিসর্গ বা ব্রহ্মার সৃষ্টি, স্থান বা সৃষ্টির সৃষ্টি, পোষণ বা ভগবত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ, 5 নম্বর উক্তি বা কর্ম বাসনা, 6 নম্বর মন্বন্তর বা সাধারণ মানুষের জন্য মনুপ্রদত্ত কর্ম বা কর্ম, 7 নম্বর ঈশানু কথা বা ভগবানের অবতারদের বর্ণনা, 8 নম্বর নিরোধ বা সৃষ্টির সংবরণ, সংবরণ মানে वाइंडिंग अप, एनिहिलेशन, গোটানো, 9 নম্বর सब ध्यान से सुनिए স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় আবরণ থেকে মুক্তি এবং 10 নম্বর আশ্রয় বা পরমাশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান। দশম তত্ত্বটি হচ্ছে অপর 9টি তত্ত্বের আশ্রয় রিব। दशम तत्व क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोग भगवान पे आश्रित होंगे। यही तो भागवतम बताता है। भागवतम पढ़ के व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। तो बाकी जो पहला 9 तत्व है वो कैसे 10 नंबर तत्व का आश्रय लेगा, इसके बारे में भागवतम बताते हैं। প্রথম 9টি তত্ত্ব থেকে দশম তত্ত্ব বা পরম আশ্রয়ের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য মহাত্মারা কখনো প্রত্যক্ষভাবে মানে ডাইরেক্টলি, আর কখনো পরোক্ষভাবে মানে ইনডাইরেক্টলি, কখনো বা স্তুতি করে, আবার কখনো বা গল্পের ছলে এই 9টি তত্ত্বের বর্ণনা করছেন। कैसे हम लोग भगवान का आश्रित, कोई स्तुति करता है, जैसे ब्रह्मा जी स्तुति करता है कितना बार, हे प्रभु आप ही भगवान ब्रह्मांड का सृष्टि करता पालन करता, आप 3 गुणों का सृष्टि करता है लेकिन आप 3 गुणों में फंसे नहीं है, सब आपका चरण आश्रित है। ऐसे करके सब इंद्र वरुण सब कितना, सब जो भी देवी देवता है सब आपसे निकला हुआ है, और सब ब्रह्मांड का अलग अलग पोस्ट संभाला है, लेकिन सब आपके आदेश से ही सब कुछ होता है। ऐसे ऐसे करके कितना स्तुति करता है ब्रह्मा जी। तात्पर्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम लोग ने अभी किया। শ্রীমদ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম আর 2টি নম্বর এই শ্লোকের 2টি শব্দটি দুটিতে 10টি বিষয়ের তালিকা দেওয়া আছে। এই 10টি বিষয়ের মধ্যে দশম বিষয়টি হচ্ছে মূল বিষয় এবং অপর 9টি বিষয় সেই মূল বিষয় থেকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 10টি বিষয় হচ্ছে, अच्छा तो अभी ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? इसलिए कोट कर रहे हैं दिलीप प्रभु क्योंकि पहला 9 तो अंतिम 10 नंबर के ऊपर आश्रित है। Yes. ठीक जैसे प्रीतिमय नंदन प्रिया माता जी ध्यान से सुनिए, ठीक जैसे एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जितना भी अंश और कला है सब किन पे आश्रित है? कृष्ण पे आश्रित। तो ऑल द प्रेडिकेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। तो घुमा के बोला हुआ है, जिस तरह कल आलोचना होला था ना इंद्रावती माता जी कि सब्जेक्ट शुड बी फर्स्ट एंड प्रेडिकेट शुड फॉलो। जैसे मैं उदाहरण दे रहा, श्रीवास प्रभु स्कूल जा रहे हैं, पहले श्रीवास प्रभु आना चाहिए। तो वैसे ही यहां भी पहले 9 चीज बताया गया है और फिर 10 नंबर चीज बताया गया है, और 10 नंबर चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला 9 चीज 10 नंबर चीज पे आश्रित है, लेकिन उल्टा बोला गया है। बुझा गया ना इंद्रानी माता जी? प्रभु जी हरे कृष्णा, पहले यहाँ पे प्रेडिकेट बोला गया है, सब्जेक्ट बाद में। साधारण तो क्या होता है, नॉर्मली हुआ उचित पहले सब्जेक्ट होगा। सरोज माता जी आज मंदिर में जाएंगे, शुड फॉलो प्रेडिकेट। लेकिन अगर इसमें देखें आप, अभी जो भागवतम का श्लोक उन्होंने उदाहरण भी दिया है, पहला 9 चीज 10 नंबर चीज पे डिपेंडेंट है, तो उल्टा करके दिया गया है। ठीक जैसे एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, बाद में आता है कृष्णास्तु भगवान स्वयं।
तो एकदम मैचिंग मैचिंग उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी। आ रहा है समझ में अच्युत करुणेश्वर प्रभु? हाँ प्रभु। थैंक यू। अदरवाइज क्यों इस श्लोक को कोट करेगा? अभी इस श्लोक को कोट करने के लिए देखिए, ये अभी हम लोग 91 92 पढ़ा, करेक्ट? इसके आगे वाला श्लोक ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের পরম। এই প্রসঙ্গে আরো একটি শ্লোক শোনো, ব্রহ্মা জি আগে बताया, যাতে সব রকম কুব্যাখ্যা খণ্ডন করা হয়েছে। ओके, जय कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। और एक तो उस उदाहरण में अभी अभी हम लोग जो श्लोक पढ़ा उसको बताया। उनका इंटेंशन क्या था कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है ये गड़बड़ है। इति चमसा कला पुंसा कृष्णासु भगवान स्वयं, आप ही सबका उत्स है। ऐसा नहीं कि सबसे आप आए हैं। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स नॉट दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स, नो। শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোক 2টি 10টি বিষয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই 10টি বিষয়ের মধ্যে দশম বিষয়টি হচ্ছে মূল বিষয়, এবং অপর 9টি বিষয় সেই মূল বিষয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই 10টি বিষয় হচ্ছে, जैसे हम लोग ने आलोचना किया, नंबर 1 স্বর্গ, শ্রী বিষ্ণুর প্রথম সৃষ্টি, 5টি স্থূল জড় পদার্থ প্রকাশ, পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশ, 10টি ইন্দ্রিয় প্রকাশ, মন বুদ্ধি অহংকারের প্রকাশ, এবং মহাতত্ত্ব বা বিরাট রূপের প্রকাশ। ये सब स्वर्ग में आता है, माने फर्स्ट क्रिएशन, ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান, মানে 24 যে এলিমেন্টস আছে সেগুলো। बुझा गया? एक बार हिंदी में पढ़िए, स्वर्ग में क्या क्या आता है? विष्णु द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि 5 स्थूल तत्वों, रुकिए, 5 स्थूल तत्वों में क्या क्या आता है? सब लिखिए पेंसिल में, उधर लिखिए बुक में, बोलिए बबीता माता जी, 5 स्थूल तत्वों में क्या आता है? इतना इजी चीज और क्या पूछे? मन बुद्धि नहीं, स्थूल तत्व, स्थूल वो तो सूक्ष्म हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लिखिए, सब लिखिए पेन से उधर। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इंद्रिय अनुभूति के विषय 10 इंद्रियां, 10 नहीं, जल्दी। इंद्रिय अनुभूति के विषय, इसमें क्या क्या आएगा? विजन, तो विषय क्या क्या है? इंद्रिय से क्या क्या अनुभूति होता है? आप दर्शन कर सकते, विजन, शब्द, स्पर्श, हाँ, रूप गंध, शब्द स्पर्श रूप गंध, और क्या? शब्द स्पर्श रूप गंध, और कुछ छूट रहा है। एनीवेज, तो ये शब्द कान से शब्द, स्पर्श त्वचा से स्पर्श, रूप स्वाद, 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 करेक्ट, आंखा से दृष्टि, फिर शब्द स्पर्श रूप गंध, गंध नाक से, नासिका से, और क्या रह गया? टेस्ट, वो जिह्वा से। तो ये क्या हो गया बबीता माता जी? ये विषय अनुभूति होगी। हाँ, विषय अनुभूति। इसके बाद क्या है? 10 ठो इंद्रियों। हाँ, 10 ठो इंद्रिय के 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। आंख का नाक जिह्वा त्वचा, ये क्या हो गया? ज्ञान इंद्रिय। इससे और 5 कर्म इंद्रिय क्या क्या हो गया? कोई बताइए? हाथ पाँव, हाँ। नाक, नहीं, नाक ज्ञान इंद्रिय में आएगा। हैंड्स, लेग्स, फिर हाथ पैर गुदा आता है, एनस, और जनेन्द्रिय, हाँ, वो तो हो गया, जनेन्द्रिय, जेनाइटल्स, उपस्थ, हैंड्स, लेग्स, मैं इंग्लिश में देख के बताता हूँ। 5 प्रभु मल द्वार, हाँ वो हो गया। और जनेन्द्रिय, उपस्थ, पायु यानी एनस, पानी यानी हाथ,
वाक यानी माउथ, मुंह, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ओके, फिर से लिखिए 5 कर्म इंद्रिय क्या क्या है। वाक, वाक पानी पद उपस्थ पायु। वाक माने मुंह, पानी माने हाथ, पद माने चरण, उपस्थ माने जनेन्द्रिय और पायु माने गुदा। ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रिय है, सब लिखा है। 5 ज्ञान इंद्रिय क्या है वो तो इजी है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक। ओके, तो कितना हुआ बबीता माता जी, हमको गिनती बोलिए। पहले 5 स्थूल, वो क्या था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, स्थूल तत्व। फिर क्या हुआ, अरे बबीता माता जी कुछ हाँ। बोली नहीं रहे। हाँ, पर फिर उसके बाद विषय था, पर विषय था उसके बाद में क्या पूरा बोलिए। अनुभूति के विषय, अनुभूति के विषय, या अनुभूति के विषय, उसमें क्या क्या है, ये जो बोले। त्वचा, जीव, जीवा, नहीं, उसमें क्या क्या, रूप, रूप स्पर्श, आपने लिखा नहीं शायद बबीता माता जी, आपसे सुन रहे लिख नहीं रहे। पर वो ज्ञान इंद्रिय सब लिखे, वो छूट गया था, वो नहीं लिखे। तो लिखिए अभी, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और स्वाद। आकाश, और स्वाद नहीं, रूप, पर वो रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श सब। और स्वाद यस। लिखा पास्टर। मैं फिर से पूछूंगा आपको। हाँ, इसके बोलिए। बाद 10 इंद्रिय लिखा है। अभी 10 इंद्रिय में इंद्रावती माता जी 2 पार्ट है, एक है कर्म इंद्रिय और एक है ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय में क्या क्या आएगा, क्या से हम लोग को ज्ञान मिलता है, आँख, कान, नाक, नाक, मुंह, जिह्वा, मुंह नहीं जिह्वा, 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 और त्वचा, स्किन। ठीक है, बंगाली में बोलता है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वचा, त्वक, त्वचा को त्वक बोलते हैं। ये हो गया 5 कर्म इंद्रिय। अभी सॉरी, ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय क्या क्या है, मैं अभी अभी बताया। लिखिए सब लिखिए। वाक, पानी, पद, उपस्थ, पायु, लिखिए सब। वाक, पानी, पद, उपस्थ, पायु, वायु, 5 कर्म इंद्रिय। वाक, पानी, पद, उपस्थ, वाक, पानी, पद, पायु और उपस्थ। वाक क्या हो गया, मुंह, पानी हो गया हाथ, पद हो गया चरण, पायु हो गया जनेन्द्रिय और उपस्थ हो गया जनेन्द्रिय और पायु हो गया गुदा। ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रिय है। तो अभी तक कितना हुआ, 5 5 5 5 20 हुआ। ठीक है ना माधव सर, 20 हुआ। 20 हुआ। इसके बाद क्या आएगा, सूक्ष्म इंद्रिय। सूक्ष्म इंद्रिय क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। 23 हो गया। ओके, उसके बाद क्या आएगा, महातत्व। महातत्व यानी विराट रूप का प्रकाश। एक ही चीज है। हम बोले प्रभु जी, नहीं मत बोलिए अभी। तो 5 5 5 5 20 प्लस 3 सूक्ष्म है 23 प्लस 24 वाला क्या है, महातत्व। महातत्व का और एक नाम क्या है, विराट रूप। तो विराट रूप का प्रकाश, ये क्या हो गया। तो अगर आप भगवान का विराट रूप देखिएगा, उसमें अगर हम बोले 84 लाख योनि का सब है, तो गलत बोल रहा हूं क्या मैं। सृष्टि में जितना भौतिक सृष्टि में जो कुछ है सब विराट रूप में मिलता है। तो ये सब चीज भगवान ब्रह्मांड बनाने के समय दे दिया। ये लो, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सोचिए आप पनीर बटर मसाला बनाएंगे घर पे, तो आपने प्रभु को बोला प्लीज हमारे लिए मसाला लाओ, पनीर लाओ और क्या क्या उसमें चाल मगज काजू लाओ और सब ये सब खरीद के दो। तो प्रभु ने सब बाजार करके दिया और बोला आपको ये लो,
तो वैसे भगवान ने बाजार करके ये 24 चीज दिया और दुर्गा देवी को और 3 पुरुष अवतार को बोला, "इलो, अभी तुम लोग जरा सृष्टि संभालो।" ठीक है, ये जरा सृष्टि में ये 24 चीज के बाहर कुछ नहीं मिलेगा दिलीप प्रभु आपको। ये सब 24 चीजों यही मिलेगा आपको जो भौतिक जगत में। ठीक है, अभी मैं फिर से पूछूंगा, इंद्राणी माता जी बोलो, এই 24 তত্ত্ব কি কি আছে? প্রথমে আছে 5টি স্থূল তত্ত্ব, যেমন পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। হুম, তারপরে আছে 10টি, আর 5টি আছে সূক্ষ্ম, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ। ওটাকে বলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আর স্বাদ। ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ লেখা আছে। ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মানে এক একটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। রূপ, রূপ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়? চক্ষু। হ্যাঁ, স্পর্শ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়? ত্বক। গন্ধ, শব্দ নাক, কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়? কান। রস কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়? জিহ্বা। আর কি বাকি রইল? গন্ধ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়? নাসিকা। জিভ দিয়ে গন্ধ শোনেন নাকি? হ্যাঁ, নাসিকা, নাক। তো এগুলো হয়ে গেল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এরপর কি আছে ইন্দ্রাণী মাতাজি? রস আর স্বাদ, তাহলে দুটো একই হয়ে গেল তো, রস আর স্বাদ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আর কি রয়ে গেল? স্বাদ না শব্দ। শব্দ। হ্যাঁ, শব্দ, কান দিয়ে শব্দ। হ্যাঁ, ওকে। এরপর কি আছে ইন্দ্রাণী মাতাজি? এরপর কি আছে? 5 5 10টা বলে দিয়েছেন আপনি, আর বাকি বলুন। 5টা কর্মেন্দ্রিয় আছে। কি কি আছে ওর মধ্যে? পানি, বাক, পদ, উপস্থ, পায়ু। কারেক্ট। এরপর কি আছে? 5 জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চলুন, 20টা হয়ে গেছে। এরপর মন, বুদ্ধি, অহংকার। এটাকে কি বলে? 3টি সূক্ষ্ম শরীর। আর তারপরে আছে মহত্তত্ত্ব বা বিরাট রূপ। এই টোটাল হলো 24টি। তো এইগুলো সব ভগবান প্রথমেই দিয়ে দিয়েছে। এইগুলোকে বলে স্বর্গ। অল দিস ইজ কামিং আন্ডার ইন্দ্রাবতী মাতাজি স্বর্গ। अत्र सर्ग, अत्र माने এই श्रीमद् भागवते क्या क्या टॉपिक है? नंबर 1 स्वर्ग। तो ये पूरा जो इंग्रेडिएंट्स है इसके बारे में हो गया स्वर्ग। सबको समझ में आया? यस, हाँ प्रभु, यस। बोलो बंकिम प्रभु। আমাদের শরীরটাই তো 24 তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। আমাদের যে শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে, আমরা যে শরীর পাচ্ছি বা মানে ইয়ে পাচ্ছি, শরীর পাচ্ছি যেটা, সেটা তো 24 তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस, और कोई हाथ उठाया था? हाँ, हाथ उठे, म्यूट कर दिन, हाथ नामिए दिन। ओके, ज्योति माता जी आप कुछ पूछ रहे थे? यस प्रभु, पूछ रहे हैं कि 24 तत्व में तो अपना कलुषित मन भी आता है नहीं? कलुषित मन? भगवान कलुषित मन देगा? ये लो बनाओ। नहीं। अच्छा, कलुषित, पहले जो मन बुद्धि अहंकार दिया वो पूरा ब्लैंक था, ठीक है। अभी आने के बाद कलुषित होगा। हम लोग जब ऊपर से नीचे गिरा तो एक मन बुद्धि अहंकार मिला, ठीक है। अभी भौतिक जगत के संस्पर्श में आने के बाद ये कंटेमिनेशन होगा। समझ में आ रहा है? यस प्रभु, थैंक यू। तो जैसे तो क्या बोले आपको, कोई बच्चा जन्म लिया तो बच्चा का कोई पाप नहीं रहता है, निष्पाप बच्चा। अभी हम लोग जैसे व्यक्ति लोग से मिलने के बाद उसका दिमाग खराब होगा ऐसे कुछ जड़ जगत में घूमेगा फिरेगा तब उसका दिमाग करप्ट होगा ना। नहीं तो पहले जब जन्म लिया हो तो एकदम निष्पाप बच्चा, हम लोग बोलते इनोसेंट चाइल्ड, वैसे ही कुछ। प्रीति में नंद प्रेम आदि जी। जैसे बारिश होता है, बारिश का पानी एकदम ऊपर से गिरता है, एकदम साफ रहता है कांच की तरह, लेकिन जमीन पे आते ही वो धूप से मिलके गंदा हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। रेन वाटर एकदम क्लीन है, लेकिन जब आता है तो पोल्यूशन के साथ मैचिंग मिक्स होके क्या होता है? एसिड रेन होता है ना, हम लोग पढ़े थे स्कूल में। ओके, तो ये है फर्स्ट इंग्रेडिएंट स्वर्गो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भागवत में मिलेगा? विसर्गो। विसर्गो में क्या लिखा है देखिए ध्यान से। गौण सृष्टि
অথবা ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত দেহের সৃষ্টি। ठीक है, तो गौण सृष्टि यानी सेकेंडरी क्रिएशन। नंबर 1 इज कॉल्ड प्राइमरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन में क्या क्या आता है, यानी ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है अशोक प्रभु, क्या उसके लिए एक महाविष्णु कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलेगा, एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करेगा, उनका नाभि से कमल फूल निकलेगा, कमल फूल से ब्रह्मा जी का सृष्टि होगा। सेकेंडरी क्रिएशन हो गया। और ब्रह्मा जी अभी यह खत्म नहीं हुआ, ब्रह्मा जी प्रजापति उत्पन्न करेगा, मनु शतरूपा, फिर चतुष्कुमार को चतुष्कुमार ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न किया, तो ऐसे ऐसे करके उत्पन्न किया, लेकिन उन लोग बोला सर हम फादर आई डोंट वांट टू डू क्रिएशन, चला गया। बहुत गुस्सा हो गया ब्रह्मा जी। फिर मनु शतरूपा वो उत्पन्न किया, अभी अलग अलग मनु में अलग अलग ऐसे करके जीव से भर दिया, 84 लाख से पूरा ब्रह्मांड को भर दिया। ये हो गया विसर्ग। विसर्ग में लिखा है गौण सृष्टि अथवा ब्रह्मांड ब्रह्मा कर्तृक स्थावर और जंगम समस्त देह सृष्टि। स्थावर में क्या क्या आएगा, स्थावर में ट्रीज आएगा जो लोग हिलता नहीं है लेकिन जीव है, और जंगम में मूवेबल जो जीव है जितना भी मूव करता है। 3 नंबर अत्र सर्ग विसर्गश्च। 3 नंबर क्या है, स्थानं पोषणम उतय। स्थान में क्या क्या आता है, सृष्टि स्थिति। परमेश्वर भगवान श्री विष्णु কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের পালন। শ্রী বিষ্ণুর কার্যকলাপ ও মহিমা ব্রহ্মা এবং শিবের থেকে অধিক, কেননা যদিও ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং শিব তা ধ্বংস করেন, किंतु विष्णु ताके पालन करें। ये टॉपिक भी आपको भागवतम में मिलेगा, कैसे विष्णु ब्रह्मांड को पालन करते हैं। इसके लिए अलग अलग नियंत्रण बनाया, अलग अलग देवी देवता को एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट दिया है। इसलिए विष्णु ने देवी दुर्गा देवी को नियुक्त किया गया है, और उन्होंने 3 गुण से जीवों को बद के रखता है इस जड़ जगत में। ये सब डिस्कस मिलेगा आपको टॉपिक, ठीक है, किस तरह विष्णु इस ब्रह्मांड का पालन करता है। स्थानम पोषणम। पोषणम में क्या आएगा, चौथा में भगवान तार भक्तদের বিশেষভাবে পালন করেন। एक तो जड़ जगत का पालन स्थानम, पोषणम মানে ডিভোটি পালন। রাজা যেমন রাজ্য শাসন এবং প্রজা পালন করলে তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষাবেক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন एवं ताদের प्रति যত্নশীল হন। याद है वो अकबर वाला उदाहरण जो राजीव प्रभु ने दिया था, जब अकबर का पुत्र पानी में गिर गया था, अकबर तो फुल स्पीड भाग के खुद जंप किया था पानी में और खुद अपना पुत्र को बचाया था। तब शायद बीरबल उनको पूछा आपने क्यों जंप किया, आपका पास तो इतना अटेंडेंस था, आप क्यों नहीं बोला उठाओ उसको, ऐसे क्यों नहीं बोला, आप खुद क्यों जंप किया। बोले अरे मेरा अपना पुत्र है। तो ऐसे भगवान जब देखता है कि अरे मेरा अपना डिवोटी है, तो उसके लिए भगवान पोषण करता है। ओके, दैट इज द 4th टॉपिक। उसमें क्या क्या उदाहरण आएगा, जिसे आप लोग ने बताया, प्रहलाद महाराज को कैसे भगवान ने रक्षा किया, ध्रुव महाराज गजेंद्र को कैसे रक्षा किया, एकदम एन मौके भगवान द्रौपदी को कैसे भगवान ने सारी बढ़ाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये चौथा में आएगा। तीसरा में क्या था, स्थान, कैसे इंद्रावती माता जी जड़ जगत का कैसे सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो 3 नंबर। 4 नंबर डिवोटीज के लिए, स्पेशल वीआईपी के लिए। ठीक है, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানও তার চরণে সর্বতোভাবে সমর্পিত আত্মা ভক্তদের অনুগ্রহ করেন এবং তাদের বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। চৌথা हो गया। यस বঙ্কিম প্রভু, আমাদের গীতাতে যে ক্ষেত্রজ্ঞ যেটা বলা আছে, এইটাই কি স্যার সে বাস্তব জিনিস? আমাদের গীতাতে আমরা পড়ি ক্ষেত্রজ্ঞ মানে ক্ষেত্র হচ্ছে স্যার। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। 5 नंबर स्थानम पोषम उतया। उत्ति, उत्ति माने कर्म वासना। ये भी आपको टॉपिक भागवत में मिलेगा। उक्ति कर्म वासना अथवा स्थान काल और पात्रेर प्रयोजन अनुसारे सृष्टि करार अनुप्रेरणा।
कर्म वासना अथवा स्थान काल पात्रेर प्रयोजन, इसमें क्या उदाहरण दे सकते हैं? न्यू इन्वेंशन न्यू इन्वेंशन। यस, करुणा राधे माता जी, इंग्लिश में क्या दिया है 5 नंबर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन में? अनम्यूट करके दया करके बोलिए। Uti, the urge for creation or initiative power, that is the cause of all inventions according to the necessities of time, space and objects. यस क्या यस क्या बोलिए, समझाइए अभी। यस बोलिए, उदाहरण दीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कुछ नया चीज जरूरत पड़ेगा। वाह, सुंदर। Yes, आविष्कार। उदाहरण दीजिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अरे उदाहरण दीजिए भागवत में इसका उदाहरण दीजिए। कर्म वासना अथवा स्थान काल और पात्रे प्रयोजन। जैसे भगवान ने वराह अवतार लिया, क्यों लिया? क्योंकि पृथ्वी जल में गिर गया था और उसको उठाना दरकार था। तो एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस भगवान ने वराह रूप में आकर अपना दांत या नाक होगा, वो दांत ही होगा, दांत से उठा दिया पृथ्वी को और उसको एक्सिस में रखा, जो स्थान में रखना चाहिए। ये एक उदाहरण मेरे आ रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी का सब शर्त रखते हुए उन्होंने ऐसा एक रूप लिया जिससे उनका भक्त ब्रह्मा जी का भी सम्मान रखा जाए और साथ ही साथ भक्त को जो असुविधा दे रहा है प्रहलाद को, उनको भी रक्षा प्रदान किया जाए। और भगवान ने नृसिंह अवतार रूप लिया। तो ये सब उदाहरण आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, टेकिंग द एक्शन। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु, अभी हम लोग पढ़े जैसे कि समुद्र मंथन में भगवान ने कूर्म अवतार लिया, अजीत अवतार लिया। वेरी नाइस। कितना आगे से ही उन लोग को गाइड कर दिया। हाँ, टाइम प्लेस देखो भाई, इन लोग बहुत ये मांगेगा वो मत दे देना, छोटा छोटा चीज दे देना। ये लोग बोलेगा हमको मुंह के सामने, वासुकी के मुंह के सामने जाना है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हमको ये दे दो, वो दे दो। क्या क्या मांगा था? सुन लो। अप्सरा नहीं, क्या मांगा था? बोले ले लो। कुछ मांगा था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कल। बोलिए पृथ्वीनंद को माता जी। भगवान साउंड क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, जब भगवान युद्ध भूमि में रण छोड़ के भागे थे तो समय काल परिस्थिति देख के बोले थे कि अभी तो इन लोग को बार बार बुलाना है और मारना है, इसलिए अपना रण छोड़ के भागे। तो स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से किए भगवान। वेरी नाइस। जरासंध को छोड़ दिया, वह सबको मारा। जरासंध वही था ना, 17 बार अटैक किया था। हाँ, सबको मार दे रहा था, लेकिन जरासंध को छोड़ दे रहा था। नहीं, आप जो बोला युद्ध छोड़ के भागे, वो एक ही बार छोड़ा था, रणछोड़। वो छोड़ा था शिशु किसके लिए? नहीं, वो लास्ट में काल यौवन। हाँ, ओके। ये हम लोग डाकोर बोल के एक स्थान था गुजरात में, हम लोग गए थे बहुत साल आगे, आज से 2008-9 में। वो पहली बार हम लोग का भक्ति वृक्ष का टूर था। वो डाकोर को याद है, वहां रणछोड़ जी का मंदिर है। एनीवेज, अहमदाबाद में प्रभु जी। अहमदाबाद में ना, ऐसे कुछ ना, राजस्थान में रणथंबोर में है। राजस्थान में रणथंबोर में जगह है, वही जगह में है। हरे कृष्ण बोल। रणथंबोर में गणेश जी है। ओके, तो अरे एक मच्छर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, टाइम तो बहुत मोटा मोटी हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग 5 चीज आलोचना किया, कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ भागवतम। फिर से मैं वो श्लोक एक बार लास्ट में दोहरा रहा हूँ। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषमूतया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ठीक है, हो सके तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। बोलिए महामंजरी माता जी। तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद में, इसका डिटेल पढ़ने के बाद में पूरा भागवतम का तभी पूरा समझ में आ जा रहा है कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। वेरी नाइस। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি।
এখানে হরিল গ্রন্থ অমৃত এলো হরি মদন ভরিয়া সবে বলো হরি 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 বল হরি हरि चैतन्य चैतन्यमृतम की जय श्रील कृष्णदास गोस्वामी की जय श्रील प्रभुपाद की जय